Good morning, all of you. Some student messaged me about the confusion to understand about temperament. So today I am going to discussing about the temperament. Okay, let's start. First, we describe about the constitution, diathesis, temperament. What are the difference between these? Constitution is a broader term composed of the physical and mental sphere, while the temperament can be considered as the important aspect of the constitution, precisely denoting the mental sphere. इमोशनल स्पेयर, अगर हम मेंटल स्पेयर या इमोशनल स्पेयर की बात करें तो वो क्या होगा? टेम्परामेंट. अगर मेंटल स्पेयर और फिजिकल स्पेयर बोथ को इंक्लूड कर कर एक पर्सन को हम दूसरे पर्सन से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या होगा? इंडिविजुअलाइजेशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं? वन पर्सन को दूसरे पर्सन से इंडिविजुअलाइज करता है. नेक्स्ट, डायथिसिस. Diathesis is natural predisposition to disease, combination of attribute in an individual causing susceptibility to disease. So the diathesis means a tendency to suffer from a particular medical condition. For example, bleeding diathesis. Got it? Next. Now we describe about constitution. So the constitution, broader term, including of mental and physical level. Mental level, temperament, and physical level we describe by जनरल एंड डायथिसिस. सबकी अलग अलग हैबिट होती है. किसी को अलग क्रेविंग होती है, किसी की अलग क्रेविंग. जैसे किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है. किसी को जिसको मीठा पसंद है जरूरी नहीं अगले को मीठा पसंद हो, उसको अगले को वो से एवर्जन घटना भी हो सकती है. ठीक है ना? इससे अपन एक पर्सन को दूसरे पर्सन से इंडिविजुअलाइज करते हैं, अलग करते हैं. ऐसे थर्मल, कोई हॉट होता है, कोई चिली होता है, कोई एम्बी थर्मल होता है. तो इससे अपन एक दूसरे को हॉट को चिली से डिफ्रेंशिएट करेंगे. जैसे अपने पास एक मेडिसिन का कोई पेशेंट को अपन ने देखा तो एक मेडिसिन का ग्रुप आया. अब अपने पास में एक कुछ हॉट मेडिसिन है, कोई चिली मेडिसिन है, तो अपन को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर मोर सिमिलर मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं. एक डायथिसिस, ये फिजिकल लेवल पर है. डायथिसिस मीन्स ए टेंडेंसी टू सफर फ्रॉम ए पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल ब्लीडिंग डायथिसिस. ब्लीडिंग डायथिसिस कैसे होती है? ड्यू टू पॉजिटिव फैक्टर. कौन है इसका? फैक्टर 8. एग्जाम्पल क्या था? ब्रिटिश जो रॉयल फैमिली है उसमें क्वींस विक्टोरिया थी, उसके जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो गया, जिसके बाद जिससे उसके फैक्टर 8 में कुछ कमी है. फैक्टर 8 की लेक ऑफ फैक्टर 8 की वजह से क्या हुआ? उसकी जो उसका जो सन था वो उसके हीमोफीलिया हो गया, और जो उसकी 2 डॉटर थी वो एज ए कैरियर के रूप में वर्क किया. ओके. For other example of diathesis, rheumatic diathesis. Rheumatic means joints disease. Hemorrhagic diathesis, tubercular diathesis, scrofulous, lymphatic, gout, and Willis, etc. Now, history of temperament. Hippocrates, the father of physician. Hippocrates believed that the body is composed of 4 humors: blood, phlegm, yellow bile, and black biles. 4 ह्यूमर्स में कोई डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा? वो बीमार हो जाएगा. द इम्बलेंस ऑफ द ह्यूमर्स बाय डिस्क्रेसिया वाज थॉट टू बी कॉज ऑफ ऑल द डिजीज. नेक्स्ट, द वन pupils of the Hippocrates, Gallen's, again describe about temperament. Gallen used the term to refer to bodily disposition which determine a person's susceptibility to particular disease, always as behavior and emotional inclinations. Definition according to Webster Universal Dictionary define temperament as a characteristic combination of the bodily, mental and moral quality which together constitute the character and disposition of an individual and predispose him to act and behave in a particular manner. Statement Dictionary describe about temperament. It is a psychological and biological organization peculiar to the individual, including one's character or personality predisposition, which influence the manner of thought, action, and general view of life. It is also defined as the mental tendency or a nature or behavior of a patient. For example, irritable temperament, hysterical, nervous, etc. Temperament, for according to genetical material, personality is a bit different from the temperament. All are born with temperament trait
बट पर्सनली समथिंग विच कैन बी चेंज। पर्सनैलिटी इंसान क्या चेंज कर सकता है, लेकिन टेम्परामेंट जो बचपन से लेकर आया है, जिसमें उसके एंसेस्टर एंचेस्टर के भी गुण हैं, वो इंसान चेंज नहीं कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट वी सिलेक्ट द मोस्ट सिमिलर मेडिसिन। ओके, डॉक्टर एनिमन साहब ने भी टेम्परामेंट को अपने ऑर्गेनल में एक बहुत बड़ी वैल्यू दी। उन्होंने एफोरिज्म 2:1:1 में इसको डिस्क्राइब भी किया है। दिस इज ट्रू टू सच एक्सटेंट, पेशेंट का अगर टेम्परामेंट मिल रहा है तो इज ऑफन द डिसीज इम्पोर्टेंट इन द होम्योपैथिक सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे अपन होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्शन में, ठीक है ना। इसकी वजह से अपन एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द टेम्परामेंट। nervous temperament, melancholic temperament, sanguine temperament, phlegmatic temperament, and choleric temperament. First, nervous temperament. Nervous temperament means जो भी पर्सन छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, एंक्शियस हो जाते हैं, मेनली पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब जो चीज़ होने वाली है, ऑन गोइंग हो रही है, उसके बारे में टेंशन में आ जाते हैं। मतलब एक्यूट कंडीशन में हो सकता है, क्रोनिक, लेकिन मेनली एक्यूट कंडीशन में होता है। एक्सेसिव मेंटल एंड फिजिकली अलर्टनेस, हमेशा अलर्ट रहते हैं कि अगर एक पेशेंट है जो नर्वस टेम्परामेंट का, वो अगर डोर बेल बजेगा तो सोचेगा बाहर कौन आया, पिताजी आए, फादर्स कुछ मुझे डांटेंगे, या फिर कोई पोस्टमैन आया मेरे रिजल्ट लेकर आया। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ को परेशान रहेगा। खाना आया तो खाना में मुझे डांट तो नहीं पड़ जाएगी, मैं प्रॉपर तरीके से खा पाऊँगा, खाऊँगा। क्लास में है तो स्टूडेंट मुझसे, टीचर मुझसे कोई पूछ तो नहीं लेगा। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ पर परेशान रहेंगे ये लोग। पर्सन इज वेरी एंक्शियस, पेसिमिस्टिक एंड इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्ट मतलब अपने में खोए रहने वाले, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते ये लोग। और एक्सट्रोवर्टेड जो हमेशा दूसरों से बातचीत करना, घुल मिलकर रहना उनको बहुत पसंद आता है। दे वांट सपोर्ट, आर कॉटियस, फियरफुल, एप्रेंसिव। पीपल विद नर्वस टेम्परामेंट आर लाइक स्पायरो, लाइक लिटिल थिंग्स स्केयर देम अवे। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ पर परेशान होने वाले नर्वस टेम्परामेंट में आते हैं। लाइक दिस पिक्चर शो, मतलब कि इस पिक्चर में शो रहा है कि पेशेंट कितना ज़्यादा नर्वस है हर चीज़ को लेकर। इस टाइप के पेशेंट हैं तो उसको अपन नर्वस टेम्परामेंट मिलेंगे। इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन नर्वस टेम्परामेंट की। ओके, नेक्स्ट मैलिग्नेंट टेम्परामेंट। जैसे अपन लास्ट टेम्परामेंट डिसाइड करें नर्वस टेम्परामेंट। अगर एक्यूट कंडीशन को छोड़कर अगर हम क्रोनिक कंडीशन में बात करें, कई लोगों की आदत होती है डीपली सोचने की, फ्यूचर के बारे में बात करने की। फ्यूचर की सोच को लेकर अभी से परेशान होने लग जाते हैं, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसको देखकर वो अभी से हार्ड वर्क करते हैं कि वो कंडीशन उनके सामने ना आए। सो द मैलिग्नेंट टेम्परामेंट लाइक ए एंड चीटी क्या करती है, उसको मालूम है बारिश का मौसम आने वाला है तो खाने की दिक्कत आएगी, तो पहले से हार्ड वर्क करके वो खाना इकट्ठा करती है, हार्ड वर्क करती है। सो दे नेवर शेयर देयर वर्क विथ अदर, आर हार्ड वर्कर, एंड दैट इज वाई द मेलनकोलिक टेम्परामेंट आर किंग मेकर एंड नॉट द किंग्स। लाइक अदर एग्जाम्पल, चाणक्य को पता था कि फ्यूचर में जो अलेक्जेंडर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, वो आगे जाकर इंडिया पर अटैक कर देगा या इंडिया पर अपना कब्जा कर लेगा। उससे जैसे क्या होगा, इंडिया की लेगेसी खत्म हो जाएगी, इनके जो पुरानी धरोहर है, सांस्कृतिक चीज़ें, वो सब नष्ट कर देगा। तो उसके लिए मेहनत करता है, और चंद्रगुप्त को अपने एज ए किंग के रूप में, मतलब खुद तो किंग मेकर रहता है, चंद्रगुप्त को सारी शिक्षा देता है ताकि वो अलेक्जेंडर को हरा सके और इंडिया की जो लीगेसी है, जो धरोहर है, उसको बचा सके। तो मैलिग्नेंट टेम्परामेंट क्या होते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचने वाले होते हैं कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए अभी से हार्ड वर्क करने लग जाएंगे। जैसे किसी को एग्जाम देना है तो साल भर बाद एग्जाम है, लेकिन वो शुरुआत से ही उसकी तैयारी में लग जाएगा कि मुझे एग्जाम देना है, फाइट करना है मुझे एग्जाम, तो वो उस टेंशन में अभी से लग जाएंगे। सो दिस टेम्परामेंट are hard worker, that is why the malignant people are king maker and not the king, characterized by a pessimistic outlook। मतलब कि फ्यूचर के बारे में जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव मतलब फ्यूचर के बारे में परेशान रहते हैं, उसके लिए अभी से हार्ड वर्क करने लग जाते हैं, एंड उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल भी रहते हैं। वो चीज़ उनके अकॉर्डिंग नहीं हो जैसे वो फ्यूचर में चाहते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ पर परेशान हो जाते हैं उसमें। दे आर टैलेंटेड, फेथफुल, परफेक्ट, फिलोसफिकल, आइडियलिस्टिक पीपल वो थिंक डीप, आर सेल्फ सेक्रीफाइंग। मतलब कि फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए वो खुद के सेल्फ
की चीज़ें से भी सेक्रीफाई करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे। कुछ चीज़ उनको नहीं मिल रही है, उनका खुद को है ना उससे नुकसान हो रहा है, नहीं, लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छा होना चाहिए। सीरियस, पोएटिक, क्रिएटिव एंड फास्टिडियस पीपल, मेलैंकोलिक पीपल इज द वन हु पॉन्डर, हर चीज़ को गहराई से सोचते हैं। लाइक द किशोर कुमार, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने किसका दिया था, चाणक्य। सेकंड किशोर कुमार, ए वेरी फेमस पॉपुलर सिंगर एंड एक्टर। उसको मालूम था कि एक्टरों की ज़िंदगी क्या होती है, फ्यूचर में जाकर उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो उनकी यंग एज में तो अच्छा खासा फेमस होते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती फिर वेल्थ को लेकर या फिर हेल्थ को लेकर। लेकिन जैसे ओल्ड एज में जाते तो क्या होता है, उनकी मनी वनी सब खत्म हो जाती। तो किशोर कुमार ऐसे थे जो ऑन खुद की जो लाइफ टाइम में उन्होंने हर गाने के लिए कम से कम एक प्राइस फिक्स कर रखी थी और उससे वे बिल्कुल समझौता नहीं करते थे, ठीक है ना। मतलब कि मेलैंकोलिक टेम्परामेंट, फ्यूचर की सोच करके मेरे साथ कोई बुरा ना हो जाए आगे फ्यूचर में, इसलिए अभी से उसकी प्रिपरेशन रखनी है। गॉट इट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सैंग्विन टेम्परामेंट। सैंग्विन टेम्परामेंट पीपल आर लाइक ए ग्रॉस हॉपर। ग्रॉस हॉपर एक टीटा, क्या होता है टीटा, एक ग्रुप के रूप में आता है और एक फसल पे अटैक करके पूरी फसल एक एक क्षण में पूरी खत्म कर देता है। मतलब कि फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, उसको अभी खत्म करना है, अभी खत्म करना है। ऐसे लोग होते हैं जो आज फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आज के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल वरीड नहीं रहते। फ्यूचर में क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, उनको आज के बारे में मतलब है, आज के में जो इंजॉय करना है आज करना है, जो उनको मस्ती करनी है आज करनी है, ठीक है। So these are the only things of the present, are not worried about the future. This temperament is characterized by the fair complexion, optimistic outlook. Optimistic outlook means positive thinking about the future. Full pulse, plethoric, talkative, extroverted, very enthusiastic, energetic, cheerful, having good sense of humor. They are popular, very expressive, seem to have more fun in life, etc. Medicine like lacacies, fermphos, coffee, etc. ये people कौन होते हैं, एक्सेसिव ब्लड, मोर एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, फ्यूचर को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं है, जो भी इंजॉय करना है आज, मस्ती करनी है आज, कल के लिए कोई टेंशन नहीं। एग्जाम है, साल भर बाद है, कोई बात नहीं, साल भर बाद है ना, अभी क्या मतलब, अभी तो जो इंजॉय करना है वो करना है। तो ये हमेशा पॉजिटिव थिंक को लेकर चलते हैं। इस पिक्चर में शो हो रहा है सारा enjoyful life, they always live in enjoyful life. Now next, phlegmatic temperament. Phlegmatic people are like a buffalo. एक कहावत आपने सुनी होगी, गई भैंस पानी में। इसका मतलब भैंस एक बार पानी में चली जाती तो वहाँ एक रिलैक्स कंडीशन आ जाती है, उसके बाद आप कितना भी उसको मारो, डंडे मारो, उठाओ, नहीं उठेगी। क्यों? वो उसकी रिलैक्स कंडीशन है। तो फ्लैगमेंट टेम्परामेंट पीपल भी क्या होते हैं, लाइक ए बफेलो होते हैं। मतलब एक है ना कंफर्टेबल कंडीशन में आने के बाद में वो वहीं पर रहना पसंद करते हैं। वो डिस्टर्ब कर, उसको कोई डिस्टर्ब करे वो उनको पसंद नहीं है। वेरी स्लगिश, पैसिव, नॉन एग्रेसिव, उसमें उनको कितना भी गुस्सा दिलाओ उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा उनको। दिस टेम्परामेंट इज करेक्टराइज्ड बाय द एपेथिक्स, फ्रेंडली, पीसफुल, पैसिव एंड बोल्ड, इजी गोइंग, वेल बैलेंस्ड पीपल who are good listeners, are family oriented, pessimistic, generally late at work, childish, calm, quiet, चुपचाप, सीधे साधा, जैसा कहो वैसा करने वाले, लेकिन हमेशा लेट उठने वाले, लेट काम करने वाले, आराम से काम करने वाले। ऐसे क्लास में होंगे तो वो स्टूडेंट क्या होंगे, हर जो टीचर पढ़ाए उसको चुपचाप शांति से सुनेंगे, टीचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। टीचर को लगेगा यार ये तो हर चीज़ अच्छे से सुन रहा है, एक्चुअल में ये टीचर होते तो इंटेलिजेंट है, हर चीज़ को समझते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन प्रॉपरली चीज़ को बिना सुने, बिना जांचे परखे उसको ही जवाब नहीं देंगे। तो द फ्लेगमेटिक पीपल आर दोज हु जस्ट वॉच द सीन्स। मेडिसिन लाइक कैलकेरिया कार, बेटा कार, पल्सेटिला। कैलकेरिया कार फेयर, फैटी, फ्लेवी, बेटा कार बोथ फिजिकल, मेंटली ड्राफिश, एंड पल्सेटिला माइल्ड, जेंटल, yielding disposition. Okay. दिस पिक्चर शो दो 2%, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बस अपने में खोए रहते हैं। वो सोचता है वो पहले बात करे, अगला सोचता है कि वो पहले बात करे। नाउ द लास्ट, कॉलेरिक टेम्परामेंट। कॉलेरिक पीपल आर लाइक ए हॉर्स, गोल ओरिएंटेड।
घोड़े क्या करते हैं, हॉर्स का क्या होता है गोल, उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं। तो ऐसे जो भी गोल जिसने फिक्स लाइफ में गोल बना दिया है उसको लिए वो हार्ड वर्क करने वाले लोग, जो गोल अचीव करना ही है, कुछ भी हो जाए, बीच में कितनी भी रुकावटें हैं वो उनको रुकावटें नहीं दिखती, आती भी हैं तो वो रुकावटों को पार कर लेते हैं लीगली इलीगली कैसे भी तरीके से। सो द कॉलेज पीपल आर लाइक ए हॉर्स गोल ओरिएंटेड, रेसिंग एंड स्ट्रॉन्ग। दिस टेम्परामेंट characterized by a quick irritable temper, aggressiveness and optimism। ऑप्टिस्म मतलब फ्यूचर के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले। दीज पीपल आर एक्सट्रोवर्टेड, कॉन्फिडेंस, डायनेमिक, एक्टिव, अनइमोशनल, लीडर ऑफ फैमिली, क्रिटिकल ऑफ एरर, डिस्ट्रक्टिव, कॉल्सम, हॉटी। मतलब जो गोल अचीव करना है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए अनइमोशनल रहते हैं, जैसे किसी उसकी कंपनी को टॉप पर लेकर जाना है तो कोई उसका जो जो कर्मचारी है कोई बीमार पड़ गया, नहीं उसको काम पे आना ही है, उसको वर्क करना ही है, उसको तो गोल अचीव करना है। ऐसे बहुत सी बिहेवियर करने वाले होते हैं, मतलब लीगल इलीगल कैसे भी हो, फ्यूचर में जो चीज़ करनी है पॉजिटिव थिंक करनी है, मुझे वो गोल अचीव करना है तो करना ही है। ऐसे लोग क्या होते हैं, लीडर ऑफ फैमिली होते हैं, क्रिटिकल ऑफ द एरर, डिस्ट्रक्टिव, बीच में कोई रुकावट है उसके लिए लड़ाई झगड़ा भी हो तो वो करेंगे। द कॉलेरिक पीपल आर द मोर एक्शन ओरिएंटेड। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, हिटलर, हिटलर क्या था, उन्होंने अपने गोल अचीव करने के लिए उनको मालूम था फर्स्ट वॉर में हम जिसकी वजह से हारे हैं वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से जूस जो भी एक रेस थी उसमें उसको उन्होंने मरवा दिया पूरा, मतलब 2-2.5 लाख लोग थे सबको मरवा दिया ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस कमी की वजह से हम नहीं हारे। तो ये क्या है, कॉलेरिक टेम्परामेंट। द ग्रांड फोर्स। So I think you all would be understand of these four temperament: sanguine temperament, extroverted, optimistic, talker; choleric temperament, extroverted, optimistic, doer, work करने वाले; malignant temperament, introverted, pessimistic, thinker; and phlegmatic, like Buffalo, introverted, pessimistic, watcher. So these are all the things about the temperament. So I think you all understand. Okay, thank you. Have a nice day.